Hello everyone, welcome to my YouTube channel Code for AI and Data Science. I am Dr. Lakshman Singh, and in this tutorial I shall focus on the implementation part of the naive-Bayes classifier. We have already covered the theoretical as well as implementation part of the K-NAN algorithm. So in this tutorial I will be focusing only on the implementation part of the naive-Bayes classifier. And if guys you are new to this channel, you subscribe this channel and you can also share it with your friends. Now let's get started with the implementation part of the naive-Bayes classifier. In this tutorial we are going to work on the very famous iris flower dataset. This dataset comprises of the three classes of the flowers, and it has the four independent variables named sepal length, sepal width, petal length and petal width, and it has one dependent variable, means इसमें एक आउटपुट क्लास है आपकी, that is named species. एंड इसके इस डेटा सेट में आपके फोर इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आपका जो है फ्लावर की कैटेगरी क्या है या फ्लावर की क्लास क्या है. नाउ वी विल work or we will just implement this algorithm on the Jupyter Notebook. Jupyter Notebook is the integral part of the Colab, so you can access the Colab either directly from the Google or you can access the Colab from your Gmail account. So how you can access the Colab, we have already mentioned in our previous tutorials in a very detailed manner. So here we need not to mention this thing, how you can access the Colab. Colab के बारे में हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमारे जो हैं कि आप Colab कैसे एक्सेस कर सकते हैं और Colab आप डायरेक्टली गूगल से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या आप जो है अपने जीमेल अकाउंट में जाकर के Colab को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसमें जो जुपिटर नोटबुक है उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं. तो यहाँ हम सीधे जो है अपना ये फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं. फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एल्गोरिथम इज टू इम्पोर्ट द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी. जैसे भी हम किसी भी एल्गोरिथम पे काम करते हैं, हम कोई भी क्लासिफायर बिल्डअप करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ती है, वी नीड द सम लाइब्रेरीज, मीन्स वी नीड टू इम्पोर्ट सम लाइब्रेरीज. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इम्पोर्ट द numpy library as a np, and we will also import the matplotlib.pyplot as plt. आपका numpy जो np है और आपका plt है, ये आपके शॉर्ट नेम है numpy का और इसका matplotlib pyplot का. So similarly we can also import the pandas as pd. हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता चुके हैं कि numpy का क्या रोल है, matplotlib का क्या रोल है, लेकिन यहाँ एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि numpy आपका जो है, numpy deals with the numerical problems or numerical values. So when we want to perform some calculations, numerical calculations, so we need to import the numpy. And when we want to plot some diagram, हमें कोई डायग्राम प्लॉट करना है, कोई भी आपका जो है हिस्टोग्राम प्लॉट करना है या कोई किसी तरह की फिगर प्लॉट करनी है, so for that purpose we need to import the matplotlib library. And when we have to deal with the data, यानी हमें जो भी हमारे पास कोई भी डेटा है, .csv फाइल है या कोई भी आपका एक्सेल फाइल है, जब भी कोई किसी प्रकार के डेटा से हमें डील करना है या उसको डेटा को हमें प्रोसेस करना है, तो हमें वी नीड टू इम्पोर्ट दी pandas as pd. सो यहाँ पर हम जो है वी हैव ऑलरेडी एक्सिक्यूटेड दिस सेल, मीन्स इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट सेल and now we will load the iris dataset. Iris dataset, what is means iris dataset is the standard dataset, and here we will work on this dataset. And first of all we will load the iris dataset. Either we can load this iris dataset from the sklearn module. This dataset is a very standard dataset and this is available on the sklearn module. So either we can directly access it from the sklearn module, we can import it, or we can use the this URL from, we can access the dataset from the UCI hub. So to access the dataset from the UCI hub we can use this URL. So run this cell in order to load the dataset, but I will be I will be using this URL in order to import the dataset or to read the dataset, because then if I use this URL, then it is very easier for me to use the pandas, because this dataset is available there in .csv file. So
मैं इस डेटा सेट को जो है .cs फाइल के मीन्स एज ए .cs फाइल इंपोर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि .cs फाइल में जो है वी कैन इजिली process the data very easily. We can display the data using the head function. So I would use this URL to access the data. Now run this cell to access the data or to read the data from this URL, from this link. Now next, I will use the head function to display the records of this data set. Here we can see. Now here we can see the data set. आप देख सकते हैं इस डेटा सेट में आपका जो है देर आर दी 4 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, आपके 4 कॉलम्स हैं। ये 4 कॉलम्स आपके इंडिपेंडेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड जो आपका 5वां कॉलम है, दिस इज द टारगेट क्लास और द टारगेट वेरिएबल, जो कि आपकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। सो जो आपका लास्ट कॉलम है, 5वां कॉलम है, विच इज द टारगेट वेरिएबल। सो 5वां कॉलम इज ऑल्सो नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपके शुरू के जो 4 कॉलम्स हैं, दीज 4 कॉलम्स आर नोन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्योंकि इन जो 4 कॉलम्स के ऊपर जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था डेटा सेट को डिस्क्राइब करते वक्त, कि ये 4 कॉलम्स के ऊपर ही आपका जो 5वां कॉलम है, मीन्स टारगेट जो क्लास है, इट डिपेंड्स अपॉन दीज 4 इंडिपेंडेंट फीचर्स। आपके इन चारों जो कॉलम्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपका जो है फ्लावर की क्लास कौन सी है। सो दैट्स वाई दीज फर्स्ट प्रीवियस मीन्स फर्स्ट 4 columns are known as the independent feature, and last 5th column is known as the dependent feature. So we have already executed this cell. Now go to the next cell. In the next cell we will split the data set into training set and testing set. जैसा कि हम अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बता चुके हैं कि हम किसी भी डेटा सेट को जो है पहले ट्रेनिंग सेट में और टेस्टिंग सेट में डिवाइड करते हैं। और ट्रेनिंग सेट में और टेस्टिंग सेट में किस रेशो में डिवाइड करते हैं? जनरली हम 20-80 के रेशो में, ये मीन्स ट्रेनिंग के लिए हम 80% डेटा यूज करते हैं, टेस्टिंग के लिए हम जनरली 20% डेटा सेट यूज करते हैं, या हम 25 और 75 भी के रेशो में कर सकते हैं। मीन्स टेस्टिंग के लिए हम 25% डेटा यूज करेंगे और ट्रेनिंग के लिए हम 75% डेटा सेट यूज करेंगे। और we can also divide the data set into 70 and 30 ratio, means 70% data set will be used for the training the model and 30% of the data set will be used to test the model. So यहाँ पर हम देख लेते हैं हमने किस रेशो में जो है डेटा सेट को डिवाइड किया है। लेकिन पहले उससे पहले हम जो है जो भी हमारा डेटा सेट है उसको हम we will store the input features as a x variable and the target levels, जो आपका टारगेट क्लास है, टारगेट लेवल्स हैं, उसको हम y वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो वी विल यूज द x एंड y वेरिएबल टू स्टोर द इनपुट वेरिएबल्स, इनपुट फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल मीन्स टारगेट क्लास। सो रन दिस सेल in order to store the input features as x variable and target level as a y variable. Now next we will split the x and y into training and testing set. और हमारे पास में आपका जो आपके इनपुट फीचर्स हैं वो आपके x वेरिएबल में स्टोर हो गए हैं, और आपका जो टारगेट लेवल्स हैं यानी आपकी आउटपुट क्लास है वो आपके y वेरिएबल में स्टोर हो गई है। नाउ वी कैन डिवाइड और वी कैन स्प्लिट दिस x एंड y इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमें डेटा को स्प्लिट करना है मीन्स ट्रेनिंग सेट में और टेस्टिंग सेट में, देन वी विल हैव टू इम्पोर्ट द train_test_split from the sklearn.model_selection module। यहाँ पे हमें sklearn मॉड्यूल से बेसिकली जो है वी नीड टू इम्पोर्ट द train_test_split। ये जो आपका फंक्शन है, जो भी आपका ये क्लास है जो आपके train_test_split, ये बेसिकली ये फंक्शन क्या काम करेगा? ये फंक्शन आपका जो है इट विल बी यूज टू स्प्लिट द डेटा। एक डेटा को स्प्लिट करने का काम आएगा। आपका जो इनपुट फीचर्स का जो आपका x वेरिएबल में जो आपका डेटा स्टोर हुआ उसको स्प्लिट करेगा आपका ट्रेनिंग में एंड टेस्टिंग में, एज वेल एज जो आपका y यानी y वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हुआ है, जो आपका टारगेट क्लास है, जो आपका टारगेट लेवल है जो y वेरिएबल में स्टोर हुआ है, दिस फंक्शन विल स्प्लिट द टारगेट क्लास ऑल्सो। यानी आपका जो y वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हुआ उसको भी ये आपका ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट करेगा। सो यहाँ देख सकते हैं हम कि आपका x जो है, जो x वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है, दैट इज ऑल्सो ब्रोकन डाउन इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, एज वेल एज जो आपका y वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हुआ है टारगेट क्लास का, वो भी आपका ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट हो चुका है यूजिंग दिस train_test_split फंक्शन और मेथड।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका जो है हमने किस रेशो में डिवाइड किया है डेटा को, 70-30 के रेशो में किया है, यानी 70% डेटा हमने जो है ट्रेनिंग के लिए यूज किया है और 30% डेटा हम वी आर यूजिंग फॉर दी टेस्टिंग पर्पज। यहाँ पर रैंडम स्टेट जो हमने 10 मेंशन की है, इसको हम कोई वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि रैंडम स्टेट हमें बेसिकली फिक्स करनी है यहाँ पे, क्योंकि अगर इसको हम फिक्स नहीं करते हैं यहाँ पर तो आपका एवरी टाइम व्हेन यू विल रन दी एल्गोरिथम और व्हेन यू विल रन दी कोड, एवरी टाइम द डेटा वुड चेंज। जो भी आपका ट्रेनिंग डेटा है, टेस्टिंग डेटा है, वो आपका स्टैटिक नहीं रहेगा, वो आपका डायनामिक हो जाएगा। एवरी टाइम व्हेन यू विल रन द एल्गोरिथम द डेटा वुड चेंज। डेटा आपका सेम रहना चाहिए हर बार, जितनी बार भी आप एल्गोरिथम को रन करते हैं, आपका डेटा जो ट्रेनिंग डेटा है और टेस्टिंग डेटा है, इट शुड रिमेन सेम। सो टू फिक्स द डेटा, ट्रेनिंग डेटा इन टेस्टिंग डेटा, वी जस्ट मीन्स टेक सम वैल्यू। यहाँ पर आप कोई वैल्यू ले सकते हैं, 10, 20, वट एवर यू वांट टू टेक। सो here just execute this cell. Now this cell has been executed successfully. Go to the next step, building the classifier model and training it on training data. आपका हम जब भी कोई क्लासिफायर बिल्ड करते हैं तो बिल्ड करने के बाद में हम क्लासिफायर को ट्रेन करते हैं ऑन दी ट्रेनिंग डेटा, देन वी टेस्ट दी क्लासिफायर। तो आपके दो स्टेज हैं बेसिकली, क्लासिफायर को बिल्ड करना, उसको टेस्ट ट्रेन करना, एंड आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, वी विल टेस्ट द क्लासिफायर ऑन द टेस्ट डेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो क्लासिफायर को बिल्ड करेंगे और उसको ट्रेन करेंगे ऑन द ट्रेनिंग डेटा। यहाँ देखिए आप जो हैं, सबसे पहले हमें क्लासिफायर को बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू इम्पोर्ट द गॉसियन नेब बायस क्लासिफायर फ्रॉम द sklearn मॉड्यूल। आपका sklearn मॉड्यूल से हमें जो है गॉसियन नेब बेस्ड जो क्लासिफायर को इंपोर्ट करना है। सो वी विल इंपोर्ट द गॉसियन nb फ्रॉम द sklearn.nib_bayes, देन वी विल बिल्ड द क्लासिफायर। हमने यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, आपका GNB ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बाय यूजिंग दिस गॉसियन NB। इस गॉसियन NB की हेल्प से हमने जो है वी आर क्रिएटिंग ए GNB ऑब्जेक्ट। देन वी विल असाइन ए means we will fit our training data on this model which we have already created। जो मॉडल हमने अभी क्रिएट किया है, इस मॉडल पे हम जो अपना जो ट्रेनिंग डेटा है उसको हम जो है फिट करेंगे यूजिंग दिस gnb.fit फंक्शन। सो जैसे आपका डेटा जो है ट्रेनिंग डेटा इस मॉडल में फिट हो जाता है, देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप वी विल execute the cell. This cell has been successfully executed. Now आपका then we will go to the next step, fifth step, making prediction on the test data। जैसे हमारा हम देख चुके हैं इसमें कि हमने जो अपना क्लास पर बिल्ड कर लिया है, और जो हमने अपने क्लास पर बिल्ड करने के बाद में हमने उस पर अपने जो ट्रेनिंग डेटा है, वी हैव फिट दैट डेटा ऑन टू द मॉडल। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल मेक प्रेडिक्शन ऑन द टेस्ट डेटा। यहाँ पर जो भी हम आपका जो फंक्शन यूज करेंगे, जो मेथड यूज करेंगे, gnb.predict टू मेक प्रेडिक्शन ऑन द टेस्ट डेटा। इन द नेक्स्ट स्टेप हम आप अपना जो वी विल कंपेयर द एक्चुअल रेस्पॉन्स विद द प्रिडिक्टेड रेस्पॉन्स वैल्यूज। यानी जो हमारा जो एक्चुअल रेस्पॉन्स है, जो मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया है और जो एक्चुअल रेस्पॉन्स आना चाहिए था, वी विल मेक द कंपेरिजन बिटवीन द एक्चुअल रेस्पॉन्स एंड द प्रिडिक्टेड रेस्पॉन्स मेड बाय द मॉडल। तो यहाँ पर हम जो प्रिडिक्टेड रेस्पॉन्स और एक्चुअल रेस्पॉन्स के बीच में कंपेरिजन करेंगे यूजिंग द फंक्शन मीन्स यूजिंग द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एक्यूरेसी एज वेल एज द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। सो in order to have the accuracy as well as the confusion matrix, we will import the matrix from the sklearn module and we will then print the accuracy। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है this model produced the 100% accuracy on the iris data set, and in the next step we will plot the confusion matrix। क्योंकि confusion accuracy जो है, एक्यूरेसी से बेटर आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। मीन्स कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में आपकी सारी चीज़ें आती हैं, एक्यूरेसी भी आ जाएगा, प्रिसीजन भी आएगा, रिकॉल भी आएगा एंड F1 स्कोर भी आएगा। एक्यूरेसी केवल जो बैलेंस डेटा सेट है उसके लिए परफेक्टली काम करती है। उसके लिए आपका जो मीन्स आप
एक्यूरेसी अगर आपको निकालनी है तो एक्यूरेसी आप बैलेंस डेटा सेट के लिए निकाल सकते हैं, मीन्स इट विल गिव द एग्जैक्ट आइडिया कि आपका मॉडल कैसे काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका डेटा सेट इम्बैलेंस डेटा सेट है, यानी कि आपके डेटा सेट में इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स नहीं है दोनों कैटेगरी में, आपके अगर मल्टी क्लास डेटा सेट है और सारे कैटेगरी में आपका इक्वल नंबर ऑफ डेटा मीन सैंपल्स नहीं है, तो एक्यूरेसी इज नॉट ए गुड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. So for that purpose, precision, recall, F1 score are the good metrics, performance metrics, and these metrics can be easily computed using the confusion matrix. So in the next step, we will plot the confusion matrix in order to get the precision, recall, and F1 score. यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने जो है हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करना है. कंफ्यूजन मैट्रिक्स से हम जो है जो बाकी जो आपके प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, जो बाकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हमें इंपोर्ट करना है और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को हमें इंपोर्ट करना है. सो वी विल इंपोर्ट द क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स फ्रॉम द sklearn.matrix मीन्स sklearn मॉड्यूल से हम इंपोर्ट करेंगे इन दोनों को. एंड देन वी विल ऑल्सो इम्पोर्ट द सीबॉर्न SNS. हम जो है सीबॉर्न को भी आपका जो आपका सीबॉर्न को भी इम्पोर्ट करेंगे टू यूज द हीट मैप. बेसिकली सीबॉर्न किस लिए यूज करते हैं हम? हीट मैप जो आपका जो भी हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स अभी ड्रॉ करेंगे आप देख सकते हैं इसमें. तो हीट मैप को यूज करने के लिए वी विल बी इम्पोर्टिंग द सीबॉर्न ऑल्सो एज SNS. नाउ हमारे पास हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे इस डेटा सेट में 3 क्लासेज हैं, तो हमें तीनों क्लासेज के नेम आप पहले मेंशन करने पड़ेंगे, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3. क्योंकि हमें जब भी हमें कोई कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करनी होती है तो हमें उसके क्लास मेंशन करने पड़ते हैं. उस क्लासेज के बेसिस पे ही बेसिकली आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ होती है. अगर हम क्लासेज मेंशन नहीं करते हैं तो आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लासेज को रिप्रेजेंट करता है, आपका प्रेडिक्टेड लेवल्स को और एक्चुअल लेवल्स को. फॉर ऑल दीज 3 क्लासेज आपका यहाँ पर जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है इट वुड रिप्रेजेंट दी एक्चुअल लेवल्स एंड प्रेडिक्टेड लेवल्स. यहाँ पर हम जो है आपका pd.dataframe मेथड यूज कर रहे हैं एंड वी विल पास दी आर्गुमेंट्स आपका कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स एंड कॉलम्स एंड इंडेक्स हम इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दी CM मीन्स कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट. सो आप देन प्रिंट क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट. हम जो है जो भी आपका क्लास मीन जो कंपेरिजन है टेस्ट डेटा के बीच में और प्रेडिक्शन जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बीच में और जो टेस्ट वैल्यूज हैं उनके बीच में जो कंपेरिजन हमें करना है उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए. सो वी विल प्रिंट द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. नाउ इन ऑर्डर टू हैव द कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड अदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वी जस्ट एक्जीक्यूट दिस सेल. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर जितने भी हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स थे जो किसी क्लासिफायर को जब भी हम बिल्ड करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए जो जरूरी हैं आपके वो हम यहाँ हमें मिल चुके हैं, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर. हालांकि हम जो है एक्यूरेसी भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि एक्यूरेसी बैलेंस डेटा सेट के लिए सही परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है. लेकिन अगर आपका बैलेंस डेटा सेट नहीं है, इम्बैलेंस डेटा सेट है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो आपके प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर हैं, जो कि हमने अभी कंफ्यूजन मैट्रिक्स से निकाले हैं अभी. तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका एक्यूरेसी भी 100% थी और आपके जो प्रिसीजन और रिकॉल की वैल्यू वो भी आपका 100% है. इसका मतलब क्लासिफायर आपका जो परफेक्टली ओके है और मीन्स इट इज गिविंग इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस. आपका जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है. आपके 14 जो सैंपल्स हैं आपकी क्लास 1 कैटेगरी से हैं, मीन्स पहली क्लास से हैं. आपका जो 17 जो सैंपल्स हैं आपके दूसरी क्लास से हैं और 14 सैंपल्स आपके तीसरी क्लास से हैं. सारे के सारे सैंपल्स जो हैं पहली क्लास के भी और सेकंड क्लास के भी और थर्ड क्लास के भी. ये जो मॉडल है आपका इसने परफेक्टली इसको प्रेडिक्ट किया है. सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग दी 100% एक्यूरेसी एंड दी 100% प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर वैल्यू. सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या शो कर रहा है. ये देख सकते हैं कि आपका 14 जो आपके सैंपल्स थे पूरे सैंपल्स इसने सही से प्रेडिक्ट किए हैं क्लास 1 के लिए. दूसरी क्लास के लिए में 17 सैंपल्स थे परफेक्टली प्रेडिक्ट किए हैं. ऐसे ही आपके क्लास 3rd में आपके 14 सैंपल्स थे, ये भी परफेक्टली प्रेडिक्ट किए हैं इसने. और बाकी जो हैं आपका जो मिस क्लासिफिकेशन रेट है
पहली क्लास के लिए 0 है, दूसरी के लिए भी 0 है। सिमिलरली क्लास 2 के लिए भी आपका 0 है, और आपका बाकी जो थर्ड क्लास है उसके लिए भी मिस क्लासिफिकेशन रेट 0 है। दैट मीन्स दिस क्लासिफायर हैज वर्कड परफेक्टली फॉर ऑल दी क्लासेस। तो यहीं पर आपका जो है ये क्लासिफिकेशन एंड होता है। यहाँ पर हमने जो है आपको नाइव बेस क्लासिफायर समझाया कि आप कैसे नाइव बेस क्लासिफायर बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग द पाइथन। So I thanks to all of you for watching this video, and if you have any query related to the naive based classifier, आपका चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी एंड आपका अदर डिटेल्स दी हुई हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड नाउ अगेन थैंक्स to all of you for watching this video.